हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के जो है कक्षा 11th की इतिहास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समय की शुरुआत से। ये इतिहास का चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी जो है हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 11 हिस्ट्री जो है फ्रॉम द बिगेनिंग ऑफ द टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next question is most important. Arrive here. Discuss in the detail about the place of residence of early human. That's the most important. You know that the place is the residence of early human. That is the most important question for the exam view here. The early human live on the branches of trees between 4 lakh and 1 lakh 25 years ago. That is the most important here. 4 lakh to 1 lakh 25 years ago, there is a living is here at branch of trees. The human beings began to live in the caves and the open air sites. This is the most important questions here. The branches, there is a human live on the branches of trees between 4 and 125 years ago. 4 lakh. There is the most important period of time here. We got the early evidence of living in the cave from the Lazaret cave in the southern France. It's a measuring 12 into 10 meter, 12 into 4 meter, and developed evidence of two hearts and several fruits, vegetables, seeds, nuts, egg of animal feces. There is the most important evidence here. You know that we get the earlier evidence of living in the cave from the Lazaret cave in South France. A measurement here 4 meters, and there is evidence is found here several fruits, vegetables, seeds, nuts, eggs and animals and fishes here. Dwelling in the cave provide to the beneficial for him, as he could not protect himself from the dangers of wild animal. Living in the cave provided him to the natural refuge from several streams and cold. There's the most important caves here. They provide a beneficial here for the dangerous animal and wild, and there is an animal, and also protect the streams and cold here. The early human began to believe in the devil's the heart around the 1,25,000 years ago. It has proved as a significant step early human journey toward the progress here. This is the most important period of time that human beings live to the devils in the heart around. And we get a most significant evidence of heart constructed by the early humans as a Terra Amata and southern France. Terra Amata and southern
from there is a most important evidence are constituted by their early human in their heart. It was made up to the thatch and its roof was made up to the wood. A reconstruction of the hut at the Tara Amata stone flags skirting on the floor. This is the most important here living standard for the early Moyan here. यदि अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, कोई भी अगर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके खाने पीने की बात करते हैं, शिकार करने की बात करते हैं और इवन कि हम उसके औजारों के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे कुछ जो होता है एक ही चीज़ पे आश्रित रहती है, वो है निवास, आवास। आखिर ये सारे बात अगर हो गई किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो रहता कहाँ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम चैप्टर के सारांश को समझना चाहते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इस क्वेश्चन को अगर हम छोड़ते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी रहेगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि आरंभिक मानव के निवास स्थानों के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे वो जीवन जीते थे, कैसे वो रहते थे। तो यह बात साफ करते हैं और क्लैरिटी लाते हैं आपके माइंड में कि आरंभिक मानव पेड़ों की शाखाओं पर रहते थे। ये तो आपको भी समझ होगा। आप मोगली भी देखते हो, मोगली जो बेचारा है वो पेड़ की शाखाओं पर सोया रहता है और ऐसे ही रहते थे। आदिवासी लोग ऐसे ही रहते थे, आदि मानव लोग ऐसे ही रहते थे कि वो पेड़ों की शाखाओं पर रहते थे। और 4000 से लेके 4 लाख से लेके 1,25,000 साल पहले के बीच मनुष्य गुफाओं और खुले स्थानों में रहते थे, क्योंकि जनरल सी बात है ये गुफाएं इनके लिए जो है आश्रय देती थी और काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन ये समय काल काफ़ी लंबी है, 4 लाख साल पहले। 4 लाख साल की कल्पना करना ही बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही मुश्किल शब्द लगता है। और उस समय मनुष्य गुफाओं और खुले स्थानों में रहते थे। गुफाओं में रहने का सबसे पहला लक्ष्य हमें जो साक्ष्य मिली है हमें, वो दक्षिणी अफ्रीका के लाज़रेट गुफा में मिली है। और इनकी माप देखा जाए, जो नापा गया था 24 × 4 मीटर थी। और इसमें 2 चूल्हे, कई फल, सब्जियां, बीज, मेवे, जानवरों और मछलियों के अंडे के प्रमाण हमें मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोग गुफाओं में रहा करते थे और इन चीज़ों का जो है सेवन किया करते थे। तो देखिए, आवाज़ से हमें उनके रहन सहन के बारे में सारी बात जो है समझ में आती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है ये। तो आप समझ गए होंगे कि इसके रहन सहन के बारे में हमें दक्षिणी फ्रांस की लाज़रेट गुफा से मिली है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य है। गुफाओं में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अब वो खुद को जंगली जानवरों के खतरों से बचा सकते थे गुफा में रह के। और गुफाओं में रहने से वो भीषण जलधारा और ठंड से प्राकृतिक आश्रय मिलता था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो कैव होते हैं यानी गुफाएं होते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जो है हमें कई तरह के जो है प्राकृतिक आपदाओं से हम बच जाते हैं। इवन कि जो बाहरी जानवर होते हैं उनसे भी बचना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए आरंभिक मानव भी गुफाओं का जो है उपयोग भली भांति करते थे। शुरुआती दौर में देखा जाए तो पेड़ को शाखाओं पर रहते थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आई, गुफाओं का उन्होंने अनुसरण किया और इसका प्रमाण भी हमें लाज़रेट गुफा से मिली है, जो कि दक्षिणी फ्रांस में है। और ये काफ़ी यूपीएससी के और कई महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन जाता है। आरंभिक मानव ने लगभग देखा जाए तो कहते हैं 1,25,000 वर्ष पहले झोपड़ियों में रहना स्टार्ट किया। यानी देखा जाए तो 4 लाख वर्ष पूर्व जो है गुफाओं का उन्होंने अनुसरण किया और उससे पीछे देखें तो वो पेड़ की शाखाओं पर रहते थे। लेकिन जब धीरे धीरे देखा जाए तो उनको समझ आई तो उन्होंने जो झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया और निवास करना शुरू किया। और यह आरंभिक मानव की प्रगति की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, क्योंकि उनको समझ में आई कि जीवन को और भी जो है बेहतर बनाई जा सकती है। क्योंकि जैसे जैसे उनको समझ में आई, जैसे जैसे उनको सोच विचार आई, वैसे वैसे उन्होंने जो है प्रगति करना शुरू कर दिया। आरंभिक मनुष्य द्वारा निर्मित झोपड़ी का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में
दक्षिण फ्रांस के टेरा अमाटा में मिलता है और ये छप्पर से बना था और इसके छत लकड़ी से बनी थी। टेरा अमाटा में झोपड़ी का निर्माण फर्श और पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। तो कहते हैं ये सारे प्रमाण इस बात को साबित करता है कि आरंभिक मनुष्य जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस किए और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रोग्रेस थी, क्योंकि जब उन्होंने झोपड़ियों में रहना सीख लिया तो एक जगह रहना उनका स्वाभाविक लक्षण बन गई, और जब एक जगह उन्होंने रहना सीख लिया तो उन्होंने कृषि करने पर भी अपना जो है मन लगाया। तो इस तरह जो देखा जाए तो इनका निवास जो है काफ़ी दिलचस्प स्टेज से गुजरा और अंत में आपने देखा कि आज इंसान जो है बड़े बड़े बिल्डिंगों को बना रहा है और बड़े बड़े फ्लैटों में आज रह रहा है। तो जनरल सी बात है, ये बहुत बड़ी लंबी दास्तां है इंसानों का विकास का, और उनके आवास का भी काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रही। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप तिरपान सेंटर का दिल से मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, जनरल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण क्या है दोस्तों कि बाद में आप मुझसे ही क्वेश्चन करते हो कि सर ये चैप्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन कहाँ है, ये टॉपिक कहाँ है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं ख़त्म हो जाएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा +2 के अंतर्गत या 11वीं के अंतर्गत या BA MA या 8वीं 9वीं 10वीं कोई भी क्लास के अंतर्गत मैं डालूंगा, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आपको पता है तिरपान स्टैंडर्ड 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ बोर्ड की कमी नहीं है, हर बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक उपलब्ध है। तो आपको सिर्फ टॉपिक को समझना है, एनालाइज करना है, और ये सब ऑप्शन आपको प्लेलिस्ट में मिलता है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, तिरपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।